سجاد علی اعظم صاحب سے ہدیہ نعت شریف سماعت فرما رہے تھے، میں حضرت مولانا محمد انوار احمد صاحب نائب شیخ تفسیر جامعہ نظامیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ عظیم الشان جلسہ رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمائیں۔ مولانا محمد انوار احمد صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالی: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ تعالی اللہ ذات مصطفیٰ کا حسن ناسانی، تعالی اللہ ذات مصطفیٰ کا حسن ناسانی کہ یکجا جمع ہے جس میں تمام اوصاف امکانی، کہ یکجا جمع ہے جس میں تمام اوصاف امکانی۔ دعائے یونسی، خلق قلیلی، صبر ایوبی، دعائے یونسی، خلق قلیلی، صبر ایوبی، جلال موسوی، زہد مسیحی، حسن کنعانی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھومنے والا کناروں کی گزرگاہوں کا، گھومنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنے لگا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریخ سفر کرنے لگا۔ شب نشین پر تشریف فرما تقدس مآب حضرت مولانا مقبول ملت سید احمد پاشا قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی کوچو مجلس اتحاد المسلمین اور رکن اسمبلی پورا مجلس اتحاد المسلمین کی معزز اراکین اسمبلی، قائدین، علماء کرام، مشائخ اعظام اور حاضرین محترم، سوشل میڈیا کے ذرائع سے سننے والے خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آپ کے اور ہمارے لیے سعادت مندی کا موقع ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے موقع پر مناسبت سے اس عظیم الشان جلسے میں جمع ہوئے۔ یہ تاریخ ساز جلسہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ مسلمان اپنے نبی علیہ السلام سے کیسی قلبی وفاداری، عملی وفاداری اور تعلق قاطر رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج ہم جس دور میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں
یہ ایک حقیقت ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی دنیا میں 3 تہذیبوں کا بڑا عمل تھا. ایک تو عرب تہذیب، دوسرے ایرانی تہذیب اور تیسرے رومی تہذیب. پوری دنیا میں ان 3 تہذیبوں کو مقام و مرتبہ حاصل تھا. اور ادھر روم اور ایران کی طرف دیکھا جائے تو یہ دونوں سپر پاور کہلاتے تھے. باقاعدہ ایک رومن امپائر کھڑا تھا. اس کے بالمقابل فارس کا ایک مکمل نظام تھا جس کو آپ اور ہم ایران کے نام سے یاد کرتے ہیں. رومن امپائر کا پایہ تخت اٹلی تھا اور آدھی دنیا سے زائد مقام پر ان کو رتبہ حاصل تھا. ایسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے اور صرف یہی نہیں کہ انہیں اپنے اپنے طور پر ایک مقام اور مرتبہ حاصل تھا. باقاعدہ ان کے لقب مقرر تھے. جو رومن امپائر ہے اس کے بادشاہ کو قیصر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. اس کے بالمقابل ایران کا جو بادشاہ ہے وہ کسرا کہلاتا تھا. ان حالات میں ان تمام بادشاہوں کا مقصود اپنے جاہ و جلال کو بلند کرنا، مادیت، عیش پرستی اور اپنے آپ کو دنیا میں دوسروں کے مقابل بڑا سمجھنا تھا. کوئی عظیم مقاصد، انسانیت کے بنیاد پر مقاصد، انسانی حقوق کی بنیاد پر کوئی مقصد ان کے پاس تھا، نہ ان کا کوئی لائحہ عمل تھا. عزیزان گرامی، ایسے دور میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے اور اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. اے حبیب، آپ کسی خاص علاقے کے لیے، خاص مقام کے لیے، خاص ریجن کے لیے اور خاص لوگوں کے لیے نہیں بھیجے گئے، آپ ساری انسانیت کے لیے مبعوث فرمائے گئے. یہ رسول پاک علیہ السلام کی بعثت قرآن کے ذریعے ہمارے سامنے آتی ہے اور مسلمانوں کو ایک عالمی برادری میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، تبدیل کر دیا جاتا ہے کہ مسلمان کسی علاقے کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ مسلمان ایک عالمی برادری ہے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ آپ نے مادیت کی بنیاد پر، شخصی بنیادوں پر اور اپنی ذات کی بنیاد پر یا پھر عشرت کو بنیاد بنا کر فیصلے نہیں کیے، بلکہ آپ نے وہ تعلیمات عطا فرمائیں جس نے انسانیت کو رعب و دبدبہ عطا کیا، انسانی زندگی کو زندگی گزارنے کے رمز سکھائے، انسان کو انسان بنایا اور انسان کو عظیم مقام عطا فرمایا. انسان کے سامنے زندگی گزارنے کے اعلیٰ و عرفہ راستے کھول دیے وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، آپ اور ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک ایسا انقلاب تھا جو زمین کے ہر حصے پر اپنے اثرات کو مرتب کیا. شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک نبوی انقلاب کی روشنی نظر آنے لگی. یہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کی حقانیت کی دلیل تھی. آپ اور ہم جس آقا و مولا علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہیں، آپ کو معلوم ہے ان کا مقام کیا ہے. ان کا مرتبہ کیا ہے. قاضی ایاض رحمت اللہ علیہ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں حضرت جبرائیل کا قول نقل فرماتے ہیں. ہمارے درمیان صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، نقیب ملت
अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ फरमा हैं। आप हजरात इत्मीनान से तशरीफ अपनी जगह बैठें। काजी इयाद रहमतुल्लाहि अलैह एक कौल नकल फरमाते हैं। किसका कौल है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम का। इस रिवायत को बयान करने वाली उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हैं। हजरत जिब्राईल फरमाते हैं, कल्लबतु मशारिकल अर्ज़ि व मगारिबहा फलम आजिद रजुलन अफज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि लोगों मैंने जमीन के मशरिक़ व मगरिब को खंगाल डाला, लेकिन मैंने किसी इंसान को नबी पाक अलैहिस्सलाम से अफजल नहीं देखा। यह हुजूर का मकाम है, यह रसूल पाक अलैहिस्सलाम का मर्तबा है। और अजीजान गिरामी, मैं बात इल्म की कर रहा था। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के इल्म का आलम क्या है? मुस्नद अहमद बिन हंबल की यह हदीस अगर मैं आपको सुनाऊं तो शौक के मारे आपकी कैफियत तब्दील हो जाएगी। रसूल पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, मजलिस नबवी मुनाकिद है, सहाबा का झुरमुट अतराफ में है। एक सहाबी तशरीफ लाते हैं, उनका नाम हजरत वाबिसा जुहानी रज़ियल्लाहु अन्हु है। जब वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो सहाबा उन्हें रोक देते हैं। तो सहाबा रोकने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आने के क़ियाल में वो कहते हैं, उदऊनी, लोगों मुझे छोड़ दो, जानते हो मुझे कायनात में सबसे महबूब जात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हुजूर ये कलिमात सुन लेते हैं, फरमाते हैं, उदूहु, ऐ मेरे सहाबा, वाबिसा को छोड़ दो। हजरत वाबिसा आगे बढ़ते हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उदनु या वाबिसा, वाबिसा करीब आओ। हजरत वाबिसा अदब व एहतराम के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर ज़बान नबवी से कलीमा इरशाद होता है, उदनु या वाबिसा, वाबिसा करीब आओ। फिर वो करीब आते हैं। फिर इरशाद होता है, उदनु या वाबिसा, हजरत वाबिसा करीब आते हैं और अपने कुर्ब की कैफियत बताते हैं। हत्ता मस्सत रुकबती रुकबतहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के इतना करीब आ गया कि दरमियान में कोई चीज हायल ही न थी। फिर मैंने कुछ कहना चाहा तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाबिसा, तुम जो सवाल करना चाहते हो तुम बताओगे या मैं बताऊं? हजरत वाबिसा शौक में कहते हैं, अखबिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी आप ही बताएं मेरा सवाल क्या है। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हैं। उसके बाद हुजूर करीम अलैहिस्सलाम अपनी उंगलियों को यकजा फरमाते हैं, उनके सीने पे रखते हैं और फरमाते हैं, वाबिसा इस्तफ्ती कल्बक, सुनो तुम मुझसे पूछना चाहते थे शर क्या है और खैर क्या है, अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, नेकी क्या है और बदी क्या है। ऐ वाबिसा, अब इसका जवाब मैं तुमको नहीं देता, मैंने अपना दस्ते मुबारक तुम्हारे सीने पे रख दिया है। अब तुम कुछ जवाब दे सकोगे। जो चीज तुम्हारे दिल में खुशी के साथ आए वो खैर है और जो तंगी के साथ आए वो शर है। महबूबियत का आलम देखिए, अजमत और मर्तबा देखिए नबी करीम अलैहिस्सलाम का कि कैसा जान रहे हैं। साहिल ने सवाल भी नहीं किया और आप जवाब दे रहे हैं। सवाल भी मुकम्मल नहीं हुआ कि इधर से जवाब आया, सवाल करने की मोहलत ही नहीं दी गई। सवाल भी बताया, जवाब भी बताया और सवाल जवाब ही नहीं बताया, बल्कि उसके बाद के लिए उनके दिल को ऐसा कुशादा कर दिया कि उनका दिल कुछ जवाब देने के काबिल बन गया। यह है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक्की अलैहि रहमा अजमत और शान रिसालत के हवाले से एक और बात बयान फरमाते हैं। सूरह वज़्ज़ुहा की तफसीर के ज़िमन में वज़्ज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा, अल्लामा इस्माइल हक्की वज़्ज़ुहा के 17 मानी बयान किए हैं।
17 मानी में एक मानी यह है, ऐ हबीब मुझे कसम है तेरे नूर इल्म की जिससे कोई चीज छुपती नहीं है। क्या मकाम है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम का नूर इल्म इस कदर बुलंदो बाला है कि कोई चीज उससे छुपती नहीं है। वल्लैली इज़ा सजा, इसके भी अल्लामा इस्माइल हक्की ने 17 मानी बयान किए, उसमें एक मानी यह है, कसम है ऐ हबीब आपके दामने लुत्फो करम की जिसमें गुनहगार छुपता है तो किसी को नजर नहीं आता। रसूल करीम अलैहिस्सलाम का दामने लुत्फो करम ऐसा अजीम कि उसमें गुनहगार छुप जाए कोई फरिश्ता देख नहीं पाता। लैल के माने रात के भी हैं, लैल के माने सत्र के भी हैं, लैल के माने पर्दा के भी हैं, लेकिन यहां वो सत्र है जिसको नबी पाक अलैहिस्सलाम के दामने लुत्फो करम से ताबीर किया गया। इसीलिए शेखुल इस्लाम इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमा फरमाते हैं, जितने थे असहाब सब ये जानते थे बिल यकीन के हैं वाकिफ मौत से हर एक बशर की शाहिदी, बल्कि ताखीरे अजल चाहे तो कुछ दिक्कत नहीं, जिसके जो मरने की जा ठहराते हैं वो मरता वहीं। ये बात बानी जामे निजामिया लिखते हुए बद्र का तस्करा करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पहले ही लकीर खींच दी, फरमाया यहां अबू जहल मरेगा, यहां उद्बा मरेगा, यहां शैबा मरेगा। जब जंग मुकम्मल हुई, मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा उस मकाम पर जाते हैं और फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जैसा फरमाया उसकी एक बालिश भी कोई मय्यत इधर उधर न हुई। हालांकि जंगों में मकाम कैफियत तब्दील होती है, कोई इसको बता नहीं सकता। अज़ीज़ान गिरामी, नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये मकाम है, ये मर्तबा है कि आपको अल्लाह ने महबूबियत की सबसे आला मंजिल अता फरमाई। आपसे बढ़कर कोई मंजिल नहीं। बलगल ओला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीओ किसालिही। शेख सादी ये 3 मिसरे तो कहे, चौथा मिसरा नहीं कहे। आप बारिश में भी आए हैं, इस कदर मोहब्बत के साथ तशरीफ फरमा है तो सुने, हुजूर के लिए अगर कोई कोशिश करता है तो नवाजिश क्या होती है। शेख सादी ने 3 मिसरे कहे, चौथा क्या कहना है, बेहतर से बेहतर कहने का इरादा था लेकिन दिल में ख्याल जमा नहीं हो रहा था। बेकरारी में नींद आ गई और जब नींद आ गई आंखें बंद हुई तो किस्मत का सितारा तुलू हो गया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काब में तशरीफ लाए और फरमाया सादी कहो क्या कहते थे। आंखों से आंसू बहने लगे, ख्वाब में फरमाने लगे बलगल उला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीओ किसालिही। जब ये इरशाद फरमाया तो उसके बाद खामोशी इख्तियार की। हुजूर ने देखा कि मोहब्बत करने वाले सादी खामोश है और चौथा मिसरा कह नहीं पाए हैं तो नवाजिश फरमाते हुए, इल्तिफातो इनायत फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं सादी कहो सल्लू अलैहि वालिही, सलातो सलाम उस ज़ाते अक़दस पर और आपकी आले अत्हार पर। तो मकसद क्या है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगर कोई एहतमाम करता है, सुन्नतों का एहतमाम करता है, सुबह बेदारी का एहतमाम करता है, अपने नबी के तरीके पर चलने की कोशिश करता है तो ये शहादत मंदी उसका मुकद्दर बनती है। इख्तिताम पर मैं अर्ज करूं, सोशल मीडिया का दौर है और ये ऐसी बात नहीं है कि सोशल मीडिया जमाने रिसालत में नहीं था। अल्लाह ने जब आयत नाजिल फरमाई वांजिर अशीरतकल अक़रबीन, क्या है हबीब अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, अल्लाह की तौहीद का सबक दीजिए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, कहां, सफा पहाड़ पर। सफा पहाड़ क्या था, बनु हाशिम की बस्ती के पास सबसे बुलंद टीला था, उनका मीडिया पॉइंट था, गोया उनका मीडिया सेंटर था। सुबह सुबह कोई मैसेज देना होता तो वो वहां जाते और अरबों का तरीका था
उन लोगों का उस जमाने में ट्रेड था कि अपने लिबास को उतार देते, जब भी उस पहाड़ पर जाते तो लिबास को उतार देते। जामे निजामिया के आलमी शोहरत याफ्ता मुहक्किक रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर हमीदुल्लाह अलैहि रहमा ने इस वाक़ये को अपनी फ्रांसीसी सीरत में बयान किया है, जिसका अंग्रेजी और उर्दू में और अरबी के अलावा कई जबानों में तर्जुमा हुआ। उन्होंने यहां पॉइंट आउट किया कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जब वहां तशरीफ ले गए तो अरबों के तरीके के मुताबिक लिबास को उतार कर नहीं गए, पूरी जामा ज़ेबी के साथ मौजूद थे। यानी हुजूर ने पैगाम दिया कि तुम अपने जमाने का सोशल मीडिया जरूर इस्तेमाल करो, लेकिन उसके राइज तरीके के मुताबिक नहीं, इस्लामी अहकाम के मुताबिक, इस्लामी शरायत के रोशनी में, इस्लामी कैफियत के साथ इस्तेमाल करो। और अजीजान गिरामी, आज नौजवान नस्ल को और हमारी ख़वातीन को इस पहलू पर गौर करने की जरूरत है, इसलिए कि सोशल मीडिया के जरिए जहन साजियां हो रही हैं, दीन से इर्तिदाद की तरफ, लादीनी की तरफ लाने की साजिशें रची जा रही हैं। इन हालात में उम्मत मुस्लिमा के बाशऊर नौजवानों की और ख़वातीन की जिम्मेदारी है कि वो सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म को इस्लाम की सच्चाई से वाकिफ करवाने के लिए इस्तेमाल करें, दीन की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम के अहकाम को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ी अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।